कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा पहला बूत पिछैड़ी माई, गुर लागो चेले की पाई। एक अचंभो सुनो तुम पाई, देखत सिंह चरावत गाई। पहला पूत पिछैरी माई, गुरु लागो चेले की पाई। एक अचंभो सुनो तुम पाई, देखत सिंह चरावत गाई। रहाओ जल की मछली तरवर पे आई, देखत कुतरा ले गई बिलाई। तले रे बैसा ऊपर सूड़ा, तिसके पेट लगे फल फूला। घोड़े चर भैंस चरावन जाई, बाहर बैल गोन कर आई। कहत कबीर जो इस पद बूझै, राम रमत तिस सब किछ सूझै। घोड़े चर भैंस चरावन जाई, बाहर बैल गोन कर आई। कहत कबीर जो इस पद बूझै, राम रमत तिस सब किछ सूझै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुग जुग अटल, गुरगति ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे रहबर, नाम के जहाज हल्त पल्त दे रक्षक, लोक परलोक दे सहायक हाजर नाजर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पातशाह जी के पावन चरणों अंदर सुशोभित हुए बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों, आप वडभागे हो अमृतमयी वाणी का रस पिना कीर्तन। गुरु के कीर्तनिया सिंघा पासों बड़े ही प्यार सहित सरवण कर रहे थे। उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार भगत बाणी की विचार नाल सांझ पाई है। पावन वचनों की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई भाई मनां नूं गुर चरणां विच एकाग्रत करो। बड़े ही प्यार अदब सहित रसपनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। भगत कबीर जी के पावन मुखारबिन तो उच्चारण अज के इलाही बचन आसा राग अंदर सुशोभित हैं। ते इस शब्द दे विच जे केवल असी पढ़ीए तो बड़िया असंभव हैरानीजनक गल्लां दा जिक्र मिलता है। बड़िया अद्भुत गल्लां करामाती असंभव गल्लां लगदियां ने जदों असी पढ़ांगे। पर सिक्खी निरा पढ़न का कंसैप्ट नहीं है, सिक्खी विचारन का कंसैप्ट है। गुरबाणी निरा पढ़न का कंसैप्ट नहीं है, गुरबाणी विचारन का कंसैप्ट है। क्योंकि गुरमत ने कुदरत तो प्रकृति तो उल्ट अनहोणियां गल्लां विच यकीन नहीं किया। जिहड़ियां मनुख गल्लां अनहोणियां समझ रहे हैं इस शब्द के दरमियान असल में एक बुझारत की तरह ने, तां हैरानीजनक ने, तां अद्भुत ने। बुझारत जिहड़ी भी हैरानी पैदा करती है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਖਦੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀਵ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਆਸਨ ਝਾੜਿਆ ਨਿਕਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਬੁੱਝ ਲਏਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੋ ਇਸ ਪਦ ਬੁਝੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਝ ਲਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਝ ਲਵੇ, ਬੁਝਨਹਾਰ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਝ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਬੁਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਦ ਅਸਲੀਅਤ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਨੇਕ ਆਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ, ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਦਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਬਿਰੁਲੇ ਨੀਰ, ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਧਾ ਚਰੈ, ਨਿਤ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਗਏ ਮਰੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਦਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਤਹਿ ਦਿਸ ਜਾਗੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਕਨ ਭਗਨੰਤ ਸੈਨਮ, ਕਰਦਮ ਤੁਰੰਤ ਕਪੀਲ ਕੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾ ਕੁਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ, ਬਲਦ ਪਖਾਵਚ, ਕੌਆ ਤਾਲ ਵਜਾਵੇ, ਪਹਿਲ ਚੋਲਨਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ, ਭੈਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਏ ਪੂਤ ਹੈ ਜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਰਾਖੇ ਲੈ ਮਾਰ, 10 ਬਘਿਆੜੀ ਲਈ ਨਿਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪੁਸ਼ਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਤਰੀ, ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਤਨਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਬਚਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵੱਲ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ? ਏਕ ਅਚੰਭੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਭਾਈ, ਦੇਖਤ ਸਿੰਘ ਚਰਾਵਤ ਗਾਈ ਰਾਓ। हे मेरे वीर, हे मेरे भाई, एक अचंभो, एक अद्भुत हैरानी वाली गल सुनो। वो केड़ी है हैरानी वाली गल? कह लगे, मैं शेर नूं गऊआं चरांदे देखिया। मैं देखिया शेर गऊआं नूं चार रहा है। देखत सिंह चरावत गाई। कह लगे, शेर गऊआं चरा रहा है। हालांकि शेर का काम उन्हें गऊआं नूं मारना है, वो तो दुश्मन है, पर वो गऊआं नूं चरा रहा, वो रजा रहा, गऊआं नूं मार नहीं रहा। मैं हैरानीजनक गल देखी। जे निरे अर्थ अखरी करांगे तो गल नहीं बनेगी, सानू तरीक भाव च जाना पड़ेगा। निरे अखरी अर्थां नाल गल नहीं बनेगी। इस सारे शब्द दे विच इक्को ही विषय, वो है मनुख की पदार्थां पिछे दौड़। अपने कीमती मनुखा जीवन नूं पदार्थां पिछे दौड़ के गवा रहे हैं। ये विषय सारे शब्द का। जिस दिन जीओ इस धरती ते आया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਂਗੇ ਆਮਦ ਨਾਂਗੇ ਜਾਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ, ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਪੀਤਰ ਉੱਡ ਜਾਸੀ ਨੰਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਪਰ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ। ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। जिस दिन जन्म होया, इस जीओ का बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा रोया, धामा मारिया, चीका मारिया, कुरलाया। हुण इस बच्चे नूं की चाहिए? इहनूं सब तो पहली चीज पीण वास्ते दुध चाहिए। इहदी पहली भुख, एक भुख लैके धरती ते आया, पीण लई दुध चाहिए। इहनूं कोई दुध लिया के देवे। हुण इस बच्चे नूं भावें कोई सोना चांदी देवे, हीरे मोती देवे, तां भी इहने रोई जाना है, इहने चुप नहीं करना।
माँ प्यो लख कह भी तेरे नां ते कोठी लवा दिंदे आ, सारी जमीन तेरे नामे कर दिंदे, तू रो ना, उन्हें फिर रोई जाना, क्योंकि कोई भुख है बस जन्म समय, वो दुध है, दूजी भुख ही कोई नहीं दुनिया ते। पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, मां प्यो की सुध बुध भी बाद विच है, उन्होंने ये नहीं पता प्यो केड़ा मेरा मां केड़ी है, दुश्मन भी आके गोदी चुक ले उसकी गोदी भी चला जाता है, उन्होंने अपने दी सुध बुध नहीं है, पहली भुख है उसका पीण वास्ते दुध चाहिए। जन्म लिया एक भुख लैके धरती ते आया, फिर इस धरती तो इन्हें पदार्थ इकट्ठे किए, धन दौलत जमीन जायदाद सारा कुछ जोड़िया, चाहिए तो सी रच जाता, कह लगे नहीं रचिया नहीं, जिमें जिमें उम्र बढ़ती चली गई इसकी भुख भी बढ़ती चली गई। पहले एक भुख सी, फिर दो भुखा हो गई, फिर तीन हो गई, फिर चार हो गई, पहला कला एक दुध चाहिए सी, हुण कला दुध नहीं, हौली हौली पछाण आई मां की, हुण मां भी चाहिए, उत्थों भी दूर नहीं हो सकता, हौली हौली पछाण आई पिता की, हुण पिता तो दूर नहीं हो सकता, भुख होर वधी, हौली हौली भुख वधी, खिडौने चाहिए ने, हुण खिडौने नहीं छड़ सकता, खिडौने की कार पिछे साथियों का लड़ता है, खिडौने की कार पिछे अपने साथियों नाल झगड़े करता है, भुख है खिडौने मेरे ने, मेरे को खिडौने चाहिए ने, जिवें जिवें वड्डा आया भुख वध गई, खिडौने की कार सुट दी, हुण असली कार पिछे लड़दा, हुण असली घर पिछे लड़दा, हुण असली जमीन पिछे लड़दा, पहला नकली बैठण की थां ते लड़दा सी भैणां भरावां नाल, इत्थे मैं बैठा है, हुण असली लड़ाई की हो गई भी आ कुर्सी मेरे को होनी चाहिए, इस पदवी ते मैं बैठे, भुख वध गई, खाली हाथ आया, इतों पदार्थ इकट्ठे किए चाहिए सी रज जाता, रजिया नहीं, उल्टा जिवें जिवें उम्र बढ़ती चलेगी इसकी भुख होर बढ़ती चली गई। एक भुख लैके आया, जान लगिया मरन लगिया, हजार भुखा लैके मरिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बाणी च एक वचन किया, कह लगे जो मनुख बिरत हो जाता है ना, उदों फिर अपने मन को धोखा देने लग पैंदा, तसल्ली देने लग जाता है, उदों हिसाब किताब लेखा जोखा करता है जिंदगी का, लेखा जोखा करके आखदा कि मैं सफल रहा, मैं जिंदगी बड़ी सफल की है, की सी बड़ा गरीब साच बड़ा अमीर, जो जन्म लिया सी घर नहीं सी, हुण मैं एडा वड्डा बगला खड़ा करके चलिया वां, कई प्लाट जोड़ चलिया वां, मैं फलानी पदवी तक पहुंचा, लेखा जोखा करदा अपनी जिंदगी का, मेरी जिंदगी सफल रही है, मैं बहुत जोड़िया, जमीन जायदाद जोड़ी, घर बनाए, कुर्सी पदवी ते भी रहा, माया की कदर की, इन्ना मेरा बैंक बैलेंस है, मैं सफल करके चलिया जिंदगी। गुरु तेग बहादुर पातशाह कह लगे तू भावें अपने आप को धोखा दे जाए कि मैं सफल कर चलिया जिंदगी को, तू लख धोखा दे चल अपने आप को, तू कहना मेरी जिंदगी सफल है, ये दस भी नाम धन किना को जोड़े, आखिर जो मैं जोड़िया नहीं, कह लगे फिर सारा कुछ व्यर्थ है जोड़िया गया, फिर जो कुछ जोड़े ना सब व्यर्थ है, फिर उसका कोई लाभ नहीं है। बाल जवानी और बिरध फुल तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान, जे हरि भजन नहीं ना फिर सारा कुछ ही व्यर्थ जोड़िया होया, फिर जिंदगी हार के चले तू, फिर चले जवारी दो हाथ झार है, जवारी भावे लख कमा लवे, लख जोड़ ले, लख चीज़ां जित लवे, इस धरती ते मनुख जवारी भावे सारी दुनिया जित लवे, जिद्दन धरती तो इन्हें जाना इत्थे छड़ के चल जाना, खाली तो झाड़ के जाना, दुनियावी जवारी ते भावे जित के कोई चीज घर लै आवे, मनुख नहीं ले जा सकता। कहे कबीर किच गुण विचार चले जवारी, दो हाथ झाड़, दोनों हाथ झाड़ के तुर पैने, बल्कि जिहड़ी चीज तेरे कोल सी वो भी लुटा जानी है, असली पूंजी भी लुटा जानी है, साथ तेरी अपनी असली पूंजी सी ना, ये ते नाल लैके आया सी साह, वो भी इत्थे छड़ चलिया, वो भी इत्थे खत्म हो गए। मरदे मनुख की हालत नशई वर्गी होंदी है, अमली वर्गी होंदी है। अमली जिहड़ा ना नशे दे विच अपना घर घट बेच दिंदा है, जमीन जायदाद बेच दिंदा है, नशे दे विच अपने भांडे तक बेच दिंदा है, पर जदों अखीर ते 10 रुपए रह जाण, फिर 10 का नोट घुट के फड़ फड़ के रखता है कि 4 दिन औखे सौखे होर कढ़ लवां। जदों घर घट इन्हें बेचिया उदों परवाह नहीं मनी, जमीन जायदाद बेच दी बिल्कुल परवाह नहीं मनी, अखीर ते 10 का नोट रह गया, उन्हें फिर साम साम के रखता है भी 4 दिन औखे सौखे होर कढ़ लवां इन्हां 10 के नोट नाल।
मनुख की जिंदगी इस दशई वर्गी अमली वर्गी है। बचपन में अपनी जिंदगी के कीमती सामान दोनों हाथों नाल लुटाता रहा, जवानी च अपना कीमती जीवन दोनों हाथों नाल लुटाया। जो आंदा ना बुढ़ापा मौत सामने होवे, गिनती के 10 दिन बच जाए ना, फिर वो साम साम के रखते हैं, मरदे मरदे सफल कर जावा, मरदे मरदे सी कुछ ना कुछ कर जावा, सफल ही कर जावा, फिर साम साम के उन्होंने दिनों को खर्च कर रहे। जवानी व्यर्थ चली जाती है, बचपन व्यर्थ चला जाता है। एक भुख लैके आया, मरदे मरदे 1000 भुखा लैके मरन लग्या। मनुख ते आखदे ना मैं सफल हाँ। भाई गुरदास जी ने फिर दलीलां दे के गल की, कह लगे तू सफल नहीं है। तू किवें आखदा मैं सफल हाँ? मनुख सफल नहीं है। जिस मनुख ने 100 साल की उम्र भोगी होवे, मरण किनारे होवे ते ओहदी अखां दी रोशनी घट जाए, उन्होंने कहो भी तू एडी दुनिया देख ली, हूँ छड्ड पर अखां तो की लेना, इन्ने राग तमाशे तू देखे नहीं। आखिर नहीं मैं ऐनका लैके दिओ, भावें 2 दिन ही होर क्यों ना जीना हो, ऐनका तो बिना नहीं जो सकता। अजे मैं होर दुनिया को देखना है, देखना रजिया नहीं मनुख का, बिल्कुल नहीं देख देख रजिया। बजुर्ग हो जाता है, अजे भी तुरी जाती स्त्री को पिछे मुड़ मुड़ के देख रहे, यदि अखा रजिया नहीं रंग तमाशे देख के ना, ये कन रजे ने। इनू पूछो भी दुनिया की उस्तत भी सुनी, निंदिया भी सुनी, हासा भी सुनिया, रोना भी सुनिया, रज गया होगा 100 साल सुन सुन के। आखदा नहीं कन बंद हो रहे ने, मैंने मशीन लगा दे, रजिया नहीं सुन। अजे तो मैं अपनी उस्तत सुननी है, अजे तो गवांढी की निंदिया सुननी है, अजे तो पोतरे के ब्याह के हासे सुनने ने, अजे तो परपोते के रोण दी आवाज़ां सुननियां ने। कन नहीं रजे, कन मरदिया मरदिया भी सुनना चाहता है। जबान भी रजी, मरदिया मरदिया भी कुछ ना कुछ खाना चाहता है, भी मरते जाने फलानी चीज खवा दो एक बार। मरदिया मरदिया भी रजिया नहीं है। मनुख आखदा मैं सफल हाँ। भाई गुरदास कह लगे नहीं बस धोखा ही देने अपने आप को। तेनों कोई कहे भी 100 साल जिंदगी भोग ली है, तू रज गया होगा ज्यों ज्यों के, चल छड़ परां खेड़ा जिंदगी का। आखदा नहीं भावें 4 दिन सी होर जियो लवा, मरदिया मरदिया भी जिउना चाहता है। अखी वेख ना रजिया, बहु रंग तमाशे, दुनिया के रंग तमाशे देख देख अखा रजिया ही नहीं, अजे भी देखना चाहता है दुनिया, अजे भी पर धन पर रूप देखना चाहता है। अखी वेख ना रजिया, बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण दे हासे। कन भी उस्तत सुनना चाहते हैं, निंदिया सुननी चाहते हैं, रोना सुनना चाहते हैं, हासा सुनना चाहते हैं। सादी जीव ना रजिया कर भोग विलासे, दुनियावी पदार्थों को माण माण जवानी रजी, अजे भी खाना चाहता है। दंद कस जाते हैं, नकली लवा लेंदे हैं, अजे भी कुछ ना कुछ खाना है। सादी जीव ना रजिया कर भोग विलासे, नक न रजा वास गए दुर्गंध सुवासे। नक दुनिया दी सुगंधियां माणदिया नहीं रजदा, अजे भी होर सुगंधियां लैणियां चाहता है। रज का कोई जीव आ, मनुख आखदा मैं सफल हाँ, ये तो रज के जियो भी नहीं सकिया। मरदिया मरदिया भी चाहता भी इंजैक्शन ला दो शायद जियो बच ही जावा। रज ना कोई जीविया, कूड़े प्रवासे, पीर मुरीदा पिरहड़ी, सच्ची रह रासे। भाई गुरदास मनुख जिंदगी जिउंदियां थक जाता है पर अकदा नहीं है। थकना होर चीज होंदी है, अकना होर चीज होंदी है। मान लो कोई बाग की सैर करे ना, बाग की सैर करदियां सोहने फुल्लां नूं देखदा होवे, पंछियां दे गीत सुनदा होवे, फुल्लां दी सुगंध नूं माणदा होवे, सारा दिन घुमदियां घुमदियां थक के फिर बेंच ते रह जांदे। मैंने पूछा भी तू रज क्या देख देख के बाग नूं आखदा नहीं कि रजिया नहीं, थक गया वा, अक्या नहीं आ। हाँ लत्तां साथ दिंदियां होंदियां, मैं 2 चक्कर होर ला आंदा। इस रंग तमाशे दुनिया को देख देख के मनुख दे अखां थक गईयां, कन थक गए, जबान थक गई। रजिया नहीं मनुख, अक्या नहीं है। थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थक समाया। समाया वालों नहीं थकिया, बाकी थक गए। अक्या नहीं है संसार को देखदिया, अजे भी संसार को मानना चाहता है, अजे भी संसार को होर भोगना चाहता है। मनुख की जिंदगी मरदिया मरदिया भी भुखा ही गया। एक भुख लैके आया, 1000 भुखा लैके मरिया, रजिया नहीं, ना अखा वालों रजिया, ना कन वालों रजिया, ना जबान वालों, ना हाथों वालों, ते ना जीवन वालों रजिया।
तो ताई अज भगत कबीर जी ने वचन कहने पे, कहने लगे बड़ी हैरानी वाली गल देखी मैं। वो हैरानी वाली गल केड़ी सी? एक अचंभो सुनो तुम भाई, देखत सिंह चरावत काई। कहने लगे शेर को मैं गावां चरांदे देखिया, वो गावां नूं चरा रहा रजा रहा कि तुसीं रज जाओ। वो सिंह है, शेर है मन, ते गावां ने साडी इंद्रे। मन इंद्रियां नूं रजाना चाहता है, मन अखां नूं आखदा है अजे भी पर धन देख, अजे भी पराया रूप देख, तू रज जाएगी। मन कन्नां नूं आखदा है कन्नों अजे भी निंदिया सुन लो, चुगली सुन लो, विकारी गीत सुन लो, शायद रज जाओगे निंदिया सुनते सुनते। कन्नां नूं रजा रहा है मन जवाब रूपी गां नूं रजा रहा है। ले दुनिया के पदार्थ होर खा पी ले, 4 दिहाड़े होर खा पी ले, रज जाएगा। रजदा फिर भी नहीं, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पूरियां पा, रजदा नहीं है। मन शेर जिन्हें इंद्रियां नूं कंट्रोल च रखना सी, अधीन करना सी, उहनूं रजाण ते चल पिया, इन्हां इंद्रियां नूं रजाण लग पिया। देखत सिंह चरावत गाई। कहने लगे मन रूपी शेर इन्हां गावां नूं चराण लग पिया। होर की होया? पहला पूत पछैरी माई, गुरु लागो चेले की पाई। कहने लगे पहला पुत्र ने जन्म लिया, फिर मां ने जन्म ले लिया। उल्ट गल हो गई। गुरु ने चेले के पैरों च अपने आप को अर्पण कर दिता। पहला पूत मैंने, ये मन रब का पुत्र है, रब की अंश है। कहो कबीर ये राम की अंश, जस कागज पर मिटे न मांस। रब दे विचों प्रगट होया रब का पुत्र ये जियो। एक गल ध्यान रखियो, बड़िया धर्मां दे विच आया भी साडा जिहड़ा पैगंबर है ना रब का इकलौता पुत्र है। इकलौते का मतलब है इको एक, बाकी कौन ने? बाकी भेडां बकरियां। एक होर ग्रंथ ने लिख दिता साडे धर्म दे विच ही भी रब ने, मैं रब का पुत्र बन के आया, बाकी असीं कौन आ? गुरबाणी के वचन पढ़ के देखो, गुरबाणी आखदी है एक पिता एक इसके हम बारक। रब अकाल पुरख साडा पिता सी, सारे दी औलाद आ, सारे दे धीआं पुत्तरां सी, असीं रब दे पैदा कीते हुए पुत्तर आ। कहण लगे रब ने इस जीव पुत्र नूं पैदा कीता, पर की होया? जिस दिन जीव पैदा होया इहदे मन दे विच माया ने जन्म ले लिया। पहला जीव पैदा होया, जात सुभाणा तां जम्मिया, परिवार भला पाया, रब नूं पाया, इस जीव ने जन्म लिया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया, बराबर ताया इत्थे माया का जन्म हो गया। जदों मां ने सिर ते हाथ रखिया, प्यारा जिहा नाम दिता, जीव सोचदा मेरा वखरा नाम, मेरी वखरी होंद, मैं ते वखरा। माया ने हुक्म चला दिता, बस इत्थे माया का जन्म हो गया। जिस दिन जीव होंच आ गया भी मैं वखरा, इहदी हों मैंने माया ने जन्म दे दिता। पहला पूत पछैरी माई। कहने लगे जीव ने पहला जन्म लिया, माया का संकल्प इहदे मन विच बाद विच पैदा होया। इस तरह लगता है गुर लागू चेले की पाई। फिर इस जीव ने की किया? मन के पिछे दौड़ पिया, माया के पिछे दौड़ पिया। जीव ये मन माया के पिछे दौड़न लग पिया, इहनूं मैं एकत्र कर लवां, माया की पूजा शुरू कर दी। इस तरह लगता है जिवें गुरु चेले के पैरों च पै गया होवे। मन जिहड़ा रब की अंश सी, इन्हें माया के अपने गोडे टेक दिते, माया के चुक गया, माया पिछे जिंदगी की दौड़ शुरू कर ली। सारी जिंदगी माया पिछे दौड़द्या दौड़द्या फड़दा चाहता है, माया नूं फड़ लवां, माया नूं फड़ लवां। सतगुरु ने बाणी च वचन किया, कह लगे माया जिहड़ी ने छाया है, इस तों वध कुछ नहीं है। छाया मेरे परछावां, कोई अपने परछावे नूं फड़ना चाहे तो सारी जिंदगी भी दौड़ता रहे, परछावां नहीं फड़ना चाहता कदे। जिवें जिवें मनुख दौड़दा है, परछावे दे अगे अगे दौड़िया जाता है। परछावे नूं कोई मनुख फड़ नहीं सकता, पर हाँ एक काम हो सकता है, जे कोई सूरज वाले पासे मुंह करके चल पवे ना, तो परछावां उहदे पिछे पिछे चल पैंदा, उहदे कदमां च आ जाता है। माया वो छाया, जीव इस माया पिछे दौड़ता है, माया पकड़ च नहीं आती। ए जीव तू रब वाले पासे मुंह करके तुरना शुरू कर दे, यही माया छाया तेरे कदमां च रहेगी, तेनू सताएगी नहीं, तेरे अधीन हो जाएगी। गौ कर पकड़ी ना आई हाथ, प्रीत करी चल ही नहीं साथ। इस माया को मैं फड़ना चाहया, मेरे पकड़ च नहीं आई। कहो नानक जो त्याग नहीं तब चलनी आए पई।
जिद्दण मैनूं छड्ड के मैं रब वाले पासे तुरिया, मेरे कदमां 'च ही आ गई। दौड़ना नहीं पिया इहदे पिछे, भज दौड़ नहीं करनी पई। इस मन रूपी गुरु ने इस माया दे के अपने गोडे टेक दिते, माया दे के झुक गया, इसकी पूजा करन लग पिया। कहने लगे गुर लागो चेले की पाई। माया की दौड़ जिंदगी शुरू हो गई। तो यह गल मेरी संसारी लोगों की नहीं, हर मनुख मात्र की, भावें धर्मी लोग भी क्यों ना हो, भावें राजनीतिक लोग क्यों ना हो, हर किसी की दौड़ माया तक रही। जिन्हों ने माया तो बचने वास्ते धर्म च प्रवेश किया, वो फिर माया च उलझे रहे। कुछ लोगों ने सोचा भी माया की दौड़ है ना, माया का हंकार है, चलो माया त्याग देने। उन्होंने किया, माया त्याग दी। माया त्यागी सवाल फिर उत्थे खड़े। पहला हंकार सी मेरे वर्गा मायाधारी केड़ा, हुण हंकार है मेरे वर्गा त्यागी केड़ा। हंकार फिर उत्थे खड़े। पहला मोह सी घर दा, हुण मोह है आश्रम दा। पहला मोह सी चेलियां दा, हुण पहला मोह सी बच्चियां दा, हुण मोह है चेलियां दा। मोह भी उत्थे ही है, हंकार भी उत्थे ही है। पहला हंकार सी अमीरी दा, हुण हंकार है त्याग दा, हुण हंकार है धर्म दा। हंकार फिर उत्थे खड़े। पहला लोभ सी पदार्थों का, हुण इहदा लोभ बन गया बच्चियां का, हुण लोभ बन गया चेलियां का। वध तो वध चेले हुण मेरे। मुल्तान च यही कुछ ही होया। जदों गुरु नानक पातशाह भाई मरदाने दे नाल मुल्तान शहर के बार बार पहुंचे, अजे बाहर ही बैठे ने, मुल्तान के पीरां ने इकट्ठी होकर एक दुध का लिया भांडा लबालब भरिया दुध गुरु नानक साहब के अगे भेंट कर दिता। भाई मरदाना देखते पे ने, गुरु नानक पातशाह ने चमेली का फुल लिया, उस दुध के उपर तार दिता ते दुध वापस भेज दिता। भाई मरदाना आखते ने सतगुरु किड्डे चंगे लोग ने बेचारे, किड्डे भले सन। असीं इन्नी दूरों मुसाफर रहे, भुखे ते आए, अजे असीं मुल्तान शहर च दाखिल नहीं हुए, इन्हां ने साडे वास्ते दुध भर के भेज दिता। सुनिया सी मुल्तान पीरां की धरती है, अज देख भी लिया बाकी धर्मी लोग रहते ने इत्थे। सतगुरु हस के कह लगे नहीं भाई मरदानिया, ये धर्मी लोग नहीं, ये पखंडी लोग सन। ये सानू दुध छकण वास्ते नहीं सी दे के गए। इन्हां दा सवाल सी कि साडा मुल्तान एडा पीरां नाल भरिया पिया जिवें दुध दे नाल एक भांडा भरिया हुंदा है। जिवें इस भांडे दे विच एक दुध दी बूंद होर नहीं आ सकदी, मुल्तान विच कोई होर पीर नहीं आ सकता। भाई मरदाना कह लगे सतगुरु तुसीं चमेली क्यों पा दी विच फुल? सतगुरु कह लगे इस करके मैं जवाब दिता इन्हां पीरां नूं कि असीं दुध बन के भार बन के तुहाडे शहर नहीं आवांगे, असीं हल्के फुल बन के आवांगे, तैर के तुहाडे शहर चों लंघ जावांगे ते कुछ लैके नहीं जावांगे, जाते जाते गुरमति संगति दे जावांगे। भाई गुरदास जी ने जिक्र किया इस गल का। मेलियों बाबा उठिया मुल्ताने की जियारत जाई, अगों पीर मुल्तान दे दुध कटोरा भर ले आई, बाबे कट कर बदलते चमेली दुध विच मिलाई, जो सागर विच गंग समाई। ते भाई मरदाने ने इत्थे सवाल किया सी, सतगुरु ये मुल्तान दे पीरां ने तुहानूं दाखिल क्यों नहीं होण दिता? सतगुरु कह लगे इस करके मुल्तान दे पीर नहीं चाहते भी साडे चेले टुट के गुरु नानक दे सिख हो जाण, क्योंकि अजकल बाबे की पछाण ही उहदे चेलियां नाल है, उहदे गुणां नाल नहीं चेलियां नाल है। जिहदे पिछे जिन्ने ज्यादा चेले ओडा वड्डा साध, जिहदे थोड़े चेले ने वो छोटा साध है, जिहदे ज्यादा चेले ने वो वड्डा साध है। ते मुल्तान दे पीर नहीं चाहते भी साडे चेले टुट के गुरु नानक दे सिख हो जाण, उन्हां दा मोह है भी साडे चेले वध जाण। दूजे दा चेला भावें टुट के साडा चेला हो जाए, पर साडा चेला नहीं टुटना चाहिए। बड़े साध भी चेले पिछे लड़ाइयां करते। मोह फिर उत्थे ही है। पहला बच्चों का मोह सी, हुण चेलियां का मोह। पहला घर का मोह सी, हुण आश्रम का मोह है। हुण गृहस्थियां दे घर ढा ढा के अपने आश्रम को बड़ा कर रहे हैं। कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजिया नहीं जाए, मान मुनि मुनि पर गले, मान सदै को खाए। कह लगे इस मान ने बड़े बड़े मुनिवरां नूं खा लिया, बड़े बड़े धर्मियां नूं खा लिया इस माया ने। गुर लागो चेले की पाई, मन रूपी गुरु जिहड़ा माया रूपी चेले दे अगे झुक गया। एक अचंभो सुनो तो भाई, कह लगे लोगों हैरानी वाली गल देखो, देखत सिंह चरावत गाई। कह लगे मन रूपी शेर इंद्रियां नूं रजाण ते लग पिया।
इंद्रियां नूं रजाना चाहता है। इस तो अगले वचन, एक अचंभो सुनो तुम भाई, देखत सिंह चिरावत गाई। रहाओ, जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा ले गई बिलाई। जल की मछली, पानी की मछली, क्योंकि पानी निमाण विच हुंदा है, मछली भी निमाण च हुंदी है। इत्थे इहदा अर्थ है निम्रता वाली बिरती। जिहड़ी वो बिरती निम्रता विच, संगत विच, गुरमुखा विच जुड़ी हुई सी। तो इस सरोवर की उदाहरण भगत कबीर जी ने कुछ दिन पहला भी दी। मार मार सरवनी निर्मल जल पैठी, जिहड़ी माया मारो मार करती आई ना, साध संगत रूपी निर्मल सरोवर विच टिक गई। जिहड़ी मछली नीवे पानी च टिकी हुई सी निम्रता दे विच, कह लगे निम्रता वाली बिरती हंकार की टीसी ते चढ़ गई। जदों ये माया आनी शुरू हुई, जदों पदार्थ आने शुरू हुए, ये बिरती हंकार भरी हो गई। जल की मछली तरवर ब्याई, कह लगे तरवर दे उपर, दरखत के उपर रुझ गई है। निमाण नूं छड्ड के, पानी वर्गी निमाण नूं छड्ड के दरखत रूपी उचाई के उपर बिरती पहुंच गई, ये मछली पहुंच गई। भाव हंकार से भरी बिरती पैदा हो गई। जदों माया आई, इस माया ने हंकार नाम ले लिया। जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा ले गई बिलाई। कह लगे बिल्ली कुत्ते नूं चुक के ले गई। पूछा जी वो किवें? कुतरा का भाव है संतोख रूपी बिरती। संतोख कि मेरे मालिक जो तू देना वही मैं खावांगा, तेरे दरवाजे पे बैठा। कुत्ते का सुभाव है, जो तुम दे सोई हूं खाऊं, बयादार नाही कह कर जाऊं। मेरे लिए और दूजा दरवाजा कोई नहीं, मैं तेरे दर का वफादार, मैं तेरे दर से जुड़िया होया। कुत्ते अंदर एक संतोख की बिरती है। एक भगत भगवान जे प्राणी के नहे मन, जैसे शुक्र समान नानक मानो ताहे तन। एक ते लोभी बिरती के बारे समान आया, ते दूजा बिरती आया समान की बिरती वफादारी की आई। कहने लगे जे कितना चंगा होवे स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। नानक ए विधार भजो, एक मन में एक चित। कहने लगे जिवें कुत्ता अपने मालक का दरवाजा नहीं छड़दा ना, भावें रुखी सुखी मिले, एक मालक का वफादार बन के रहिंदा है। एडा धीरज अपने मालक के दर को नहीं छड़दा। तू भी अपने एक मालक के दर नाल जुड़ जाई, भावें सुख दवे, दुख दवे, रोटी दवे, भुखा रखे, तो उहदे शुक्र च रही। तेरी बिरती संतोखी कुत्ते वर्गी होनी चाहिए। देखत पुत्रा लै गई बिलाई, बिलाई का भाव तृष्णा रूपी बिल्ली। कहने लगे इस तृष्णा ने संतोख नूं खा लिया। जिद्दण तृष्णा पैदा हुई, लालच पैदा होया, मन में संतोख की दौड़ लग गई, संतोख भज गया। जे तृष्णा ना आवे बाहरों पदार्थों की, संतोख नहीं गवाचता, कभी नहीं गवाचता। रुखी सुखी रोटी लैके बंदा काम ते आवे ना, ते खा के आराम नाल तसल्ली नाल घर चल जाता है। पर रुखी सुखी रोटी लैके दोपहरे खान लगे ते ध्यान चला जाए गवांढी के थाल वाल, माल पूड़े पे ने, की होया? तृष्णा आ गई भी इहो जे माल पूड़े मैनू क्यों नहीं मिले। अंदर की बिरती अंदर ही टिकी रहे, तो बंदा कभी नहीं भटकता। जिद्दण अंदरला बाहर आ जाता है ना, भटकना उत्थे शुरू हो जाती है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਚੋਪੜੀ ਦਿੰਦਾ, ਖਾ ਲਈ, ਬੇਗਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਮਾਰੀ। फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाई जियो। जिद्दण दूजे की तृष्णा आ जाएगी ना, दूजे की रोटी वाली तृष्णा पैदा हो गई, अंदरों संतोख चला जाएगा। साडी जिंदगी करीब करीब संतोख भी होनी हो गई, तृष्णा नाल भरी गई। यही कारण साडी जिंदगी दे विच इस लोभ ने साडे रिश्तेदार गवा दिते, मित्र गवा दिते। इस लोभ ने सानू गुरु पीर तो वख कर दिता, माता पिता तो वख कर दिता। इस लोभ ने जो लोभी की गल की ना, सतगुरु पंचम गुरदेव जी ने सहस की श्लोकां विच, कहने लगे हे लोभ, तू सारिया पापां दा मूल है। जदों तू आना है ना जिंदगी दे विच, उदों मनुख हर तरह का पाप करना चाहते हैं। लोभ होवे
ते सारे पाप करने चाहता है कि किसी तरीके मैनू मिल जाए। हे लोभा लंपट संग सिरमोर है, अनेक लहरी कलोलते तावंत जियां बहु प्रकार अनेक भांत वो डोलते। तू भटका दिंदा है। हे लोभ जदों तू आना है ना, उदों मनुख मित्र की शर्म नहीं करता, मित्र नूं भी लुटना चाहता है। लोग सकिया का सक ला दिंदे ने एक लोभ की खातर। लोभी बंदा ना मित्रां की परवाह करदे ना रिश्तेदारां की, वो दुकान ते आ जाण उन्हां नूं भी लुट लैंदा, कदी भी छिल्ला दिंदा है। लोभी बंदा ते गुरु पीर का भी लिहाज नहीं करता, ओहदा वस चले गोलक ते कब्जा जमा लवे ते जे एडी ताकत ना होवे गोलक के उपर कब्जा ना जमे, जांदियां जांदियां जोड़े खाने च जोड़े ही सही, तो गुरु का भी लिहाज नहीं करता, अब जुत्ती क्यों ना चक के दौड़ना पवे। लोभी ने गुरु पीर की भी शर्म नहीं की, इतों तक लोभी ने मां के प्यो का भी लिहाज नहीं किया। लोभी मनुख चाहता है रातों रात बजुर्गों के गले दबा के मैं जमीन जायदाद का मालक हो जावां, वो माँ प्यो की भी शर्म नहीं करता लोभी। न च मित्रन न च इष्टन, ना वो मित्रां की लाज रखता है, ना वो अपने इष्ट गुरु की परवाह करता है। न च बांधव, रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं करता। न च मित्रन न च इष्टन न च बांधव न च मात पिता तब लज्जिया, उन्होंने ते मां ते प्यो की भी शर्म नहीं आती, क्योंकि लोभी किसी का लिहाज नहीं करता। की होया जिस दिन लोभ मन च पैदा हो गया, तृष्णा पैदा हो गई, मैं आ चीज ले लवां, संतोख रूपी कुत्ता अंदरों दौड़ गया। तृष्णा की बिल्ली ने आप इस हृदय घर ऊपर कब्जा जमा लिया। देखत कुतरा ले गई पिलाई, मानो तृष्णा की बिल्ली इस संतोख के कुत्ते में चुक के ले गई। साडी रिश्तेदारियां दे विच झगड़े किस गल दे ने? भरावां दे झगड़े क्यों ने? इस संसार दे विच रिश्तेदारां दे, माता पिता दे, भैन भरा दे, धीआं पुत्तरां दे झगड़े किस गल दे ने? सिर्फ इस गल दे झगड़े ने जो वंड वड़ाई होंदी है ना, किसी को थोड़ा ज्यादा हिस्सा आ जाता है, किसी को थोड़ा घट हिस्सा आ जाता है, बस इस हिस्से के चक्कर च लोग लड़ लड़ मरते रहते हैं। सतगुरु जी की बाणी के वचन, माए बाप पूत हित भ्राता, उन घर घर मेलियो दुआ, किस ही वाद घाट किस ही पै, सगले लड़ लड़ हुआ। लोग लड़ लड़ मरते हैं। रिश्तेदारियों के विच भी इस लोभ ने, इस तृष्णा ने फुट पवा दी, झगड़े खड़े कर दिते। साडे विआहां च कदी देखो जो लोग रिश्ता भी तय करते हैं ना, कोशिश करते हैं साडे तो वड्डा अमीर घर ही होवे। हर लड़की वाला चाहता है मेरी धी अमीर के घर जाए, मेरी अमीर नाल सांझ होवे, ते उधरों लड़के वाला वो अपने लड़के की बोली लाई जाता है, मैं इन्ना पढ़ाया अपने लड़के को, इन्ने लाख रुपया मैं कैश दे दिओ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਾਜ ਮੰਗੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋਭੀ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ? ਦੋ ਭੁੱਖੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਭੁੱਖੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਚੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਥਾਲ ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਜਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਰੱਜਿਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਭੁੱਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਥਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਥਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਹਰਲੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋੜਵੇਂ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਦੋ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਉ, ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਉ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਉ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਸਿੱਖ? फिर इस तो बाद नहीं भी पब्बा क्लब्बा जाके नाच गाने, कहने लगे नहीं गुरुद्वारे आके दोनों तेरा कीर्तन करना।
फिर बाणी का कीर्तन किया जाए, गुरु के भै भावने च बैठा जाए। सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो, संत जना कर मेल गुरबाणी गवाइया बलराम जी। साध संगत च बैठ के गुरबाणी का कीर्तन गाया जाए, ये तरीका है। तो जो साढ़े च होंगी ना कुड़माई ते रागी सिंह, उन्होंने कहा जाता है भी शब्द पढ़ो सत संतोख कर पाओ। वो बेचारे अखा नीवियां जी करके शब्द पढ़ते होंगे ने। क्यों? 3 टोकरे तो इतने फ्रूटा के पे होंगे ने, संतोख नेड़े तेड़े नहीं होता। दादी ने 4 सूट उत्थे पे होंगे ने, नानी मरी होंगी है वो सूट पे होंगे ने, मां जी अपनी बाहां साफ करती होंगी भी सोने के कड़े मिलने ने। संतोख नेड़े तेड़े नहीं होंदा ते रागी सिंह शब्द पढ़ते होंगे ने, सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़माई आया बलराम जी। संतोख नेड़े तेड़े नहीं, सच नेड़े तेड़े नहीं है। परिवार किवें प्यार किवें प्रगट होवे दोनों धिरां दे विच। इस लोक ने साडे धीरज नूं साडे संतोख नूं खा लिया। देखत पुत्रा लै गई बिलाई, इस तृष्णा दी बिल्ली ने संतोख रूपी कुत्ते दीयां दौड़ां लगा दित्तियां, कुत्ते नूं चुक के लै गई। भाव तृष्णा ने संतोख नूं खत्म कर दित्ता, जिंदगी विच दौड़ शुरू हो गई। देखत पुत्रा लै गई बिलाई, तले ने पैसा ऊपर सूला। बैसा राजपुरे अंबाले साइड की भाषा है। बैसा का अर्थ होंदा है मुढ़, टाणियां, फैलाओ। ते सूला का अर्थ होंदा है मुढ़, मूल, जड़। तले ने बैसा ऊपर सूला, कह लगे टाणियां थले हो गई, जड़ ऊपर हो गई। पूछा जी वो किवें? कह लगे जड़ ते सी एक अकाल पुरख परमात्मा निरंकार, ते टाणियां सी ये संसार, क्योंकि उस मूल दे विचों संसार प्रगट होया। तू पेड़ शाख तेरी फूली, ऐ मेरे मालक तू पेड़ है, तू मुढ़ है, तू जड़ है, ते जिहड़ी शाखावां ने ना तेरा ही फैलाव है। ये संसार तेरा फैलाव, तेरिया शाखावां ने। तू पेड़ शाख तेरी फूली, तू सूखम होवा स्थूली। तू सूखम रूप के विच है ते संसार नूं स्थूल रूप च बाहर प्रगट कर दिता है। अकाल पुरख मुढ़ है ते उहदा संसार उहदियां टाणियां ने। पर इत्थे गल उल्ट हो गई, तले ने बैसा, कह लगे टाणियां जिहड़ियां मूल बन गईयां, ऊपर सूला ते मुढ़ नूं मूल नूं टाणियां मान लिया गया। हालांकि टाणियां ना होण ते जड़ हो सकती है, पर जड़ ना होवे ते टाणियां नहीं हो सकती। किते टाणियां के पत्ते झड़ जाण, रोग लग जाए किसी दरख्त नूं, लोग टाणियां नूं दवाई नहीं पाते, जड़ां च दवाई पाते हैं, क्योंकि मूल तो वो है ना, उन्हें जड़ां ते टाणियां तक दवाई दे असर नहीं पहुंचने। पर मनुख की अणगहली, मनुख ने सोच लिया कि टाणियां जिहड़ियां ने उही मूल है। भाव संसार नूं फड़ के बह गया, संसार मूल है। धर्म की है? धर्म के टाणियां ने, मूल नाल टुट गया। मानो जिवें कोई मनुख कहे, कभी किसी ने कहा भी चलो सत संगत दे विच अज नहीं जाना, अज गुरुद्वारे नहीं जाने, टाइम नहीं है, इहदा की तो बिना भी चल जाएगा जिंदगी में। एक दिन गुरुद्वारे ना जावांगे की फर्क पैंदा है, 2 दिन सत्संगत नहीं करांगे की फर्क पैंदा है, हफ्ता कथा नहीं सुनांगे तो की फर्क पैंदा है। पर कभी किसी ने यह कहा भी अज थकिया, चलो अज दुकान नहीं खोलते, की फर्क पैंदा है। चलो अज काम ते नहीं जाते, अज आराम कर लेने, अज 2 दिन काम ते नहीं जाते, की फर्क पैंदा है। नहीं, दुनियावी कम्मां कारां नूं, संसार नूं जड़ मन बैठा है, इहदे तो बिना गुजारा नहीं होना। गुरुद्वारे जावां ना जावां की फर्क पैंदा, चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। पदार्थ नूं इहने जड़ मन लिया, कभी नहीं आखदा भी अज मैं काम ते ना जावां, अज चलो दुकान नहीं खोलदा 4 दिन, की फर्क पै जाएगा, जदों मन करेगा खोल लवांगा। नहीं, इस तरह नहीं आखदा, बल्कि इस तरह कह दिंदा है 4 दिन गुरुद्वारे नहीं जावांगे तो की फर्क पै जाएगा, 4 दिन सत्संगत नहीं करांगा तो की फर्क पै जाएगा। क्यों? क्योंकि इहने पदार्थ नूं जड़ मान लिया भी उहदे तो बिना गुजारा नहीं होना। परमार्थ ते टहणियां ने, होण ना होण चल जाएगा। उल्ट हो गया माया की दौड़ के विच। तले ने बैसा ऊपर सूला, टाणियां थले हो गई, जड़ मान लिया, टाणियां जड़ मान लिया, इस पदार्थ नूं जड़ मान लिया। जिहड़ा परमार्थ सी, परमार्थ नूं आखदा टहणियां ने, इस मूल नूं टहणियां मन के जिंदगी दे विच
तुरन लग पिया, अणगहली करन लग पिया। तलै रे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। जे जड़ी पदार्थ दी होएगी, जड़ माया दी होएगी, ओहो जे वासनावां दे फल लगणगे, ओहो जी फल होणगे जिंदगी दे विच। माया दी दौड़ होएगी, ओहो जी फल होणगे। जिंदगी दा एम, जिंदगी दा निशाना माया ते नहीं सी ना। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। जिंदगी दा निशाना ते गोबिंद है ना, पर निशाने तो खुंज गया। पदार्थ को निशाना मान लिया, माया को निशाना मान लिया, तो की होया? इस माया रूपी जड़ां दे विचों वासनावां रूपी फल लगने शुरू हो गए। जिसके पेड़ लगे फल फूला, कह लगे फिर इस माया की जड़ दे विचों वासनावां दे फुल फल लगने शुरू हो गए। घोरै चर भैंस चरावन जाई, बाहर बैल गोन कर आई। घोरै चर भैंस चरावन जाई, कह लगे मन रूपी घोड़े ते सवार होके इंद्रियां रूपी इन्हां भैंसां नूं चराण तुर पिया, इन्हां नूं रजाण तुर पिया। मेरे इंद्रे रच जाण बस। कदी मन नूं रजाण की गल नहीं सोची, कदी आत्मा नूं रजाण की गल नहीं सोची, इंद्रियां नूं रजाण लग पिया। की होया? शरीर ते रज गया, आत्मा भुखी रह गई। शरीर नजर आंदा सी, रजाया, इहनूं सोहणे वस्त्र पवाए, आत्मा नजर नहीं आई, वो नगन रह गई। शरीर नजर आंदा सी, इहदी साफ सफाई कीती, इहनूं हार श्रृंगार किया, आत्मा क्योंकि नजर नहीं आई, आत्मा जिहड़ी है मैली दी मैली रह गई, बदबूदार हो गई, उहदे हार श्रृंगार का कोई प्रबंध नहीं है। चाहिए तो यह सी भी मेरे अंदर भी एक भुख हो, हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार जित खाए हम को तृप्त भई। एक नाम का भोजन हो मेरा अंदर रच जाए। हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे नह होवे, और पहनन की हमारी सरद गई। नाम रूपी बस्तर होने, इज्जत रूपी पग रूपी बस्तर मेरी जिंदगी को ढक लैन। लगे नहीं, उल्ट हो गया। इत्थे मन रूपी घोड़े ते सवार होके इंद्रियां रूपी इन्हां भैंसां नूं रजाण चल पिया। घोरै चर भैंस चरावन जाई, बाहर बैल गोन घर आई। धीरज रूपी बैल घरों जिंदगी चों बाहर कढ दिता। तृष्णा दी पंड घर विच आ गई, गोन मेरे पंड। गोन केड़ी? गोन घर आई तृष्णा दी। कदी गुरबाणी दे वचन पढ़ो ते भगत कबीर जी ने इस गल नूं होर क्लीयर कीता। पाप पुन दे बैल विसाहे, पवन पूंजी प्रगासियो, तृष्णा गूण भरी घट पीतर, इन्हें में टाण विसाहे। कह लगे तृष्णा दी गूण, गूण मैंने पंड छट, कह लगे तृष्णा दी पंड। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैल एक थाका, चलो गूण छिटकाई। कह लगे घाटी चढ़दे जिंदगी की इस पहाड़ी के ऊपर चढ़दिया धीरज रूपी बैल बह गया, खत्म हो गया। पर तृष्णा की पंड आनी शुरू हो गई, तृष्णा बदनी शुरू हो गई, तृष्णा की पंड आ गई। बाहर बैल गोन घर आई, कह लगे धीरज रूपी बैल बाहर रह गया। हाँ, तृष्णा की पंड घर आनी शुरू हो गई, तृष्णा बदल लग पई, माया की लालसा बदल लग पई, जिंदगी में धीरज खत्म हो गया। सिर्फ माया की दौड़ जिंदगी में बाकी रह गई। तो जदों कदी सतगुरु पातशाह जी के जीवन को पढ़ो ना, तो सतगुरु पातशाह ने एक सिख की जिंदगी में संतोख भरिया। लगे सिखा कितना चंगा होवे जे तू हरि प्रभु के नाल जुड़ के संतोख भरी जिंदगी जियो लवे, तो वह जिंदगी होवे तेरी भाई लालो वर्गी। दौड़ ना रह जाए जिंदगी, वो जिंदगी भाई लालो वर्गी हो जाए, वो तेरी संतोख वाली जिंदगी जी भाई मध वर्गी हो जाए। वो जी संतोख वाली तेरी जिंदगी है, वो संतोख वाली जिंदगी तेरी गुरु के हुक्मां अनुसार बतीत हो जाए। सतगुरु पातशाह के उस जीवन को पढ़ो। कभी भाई लालो के घर गए गुरु नानक साहब, तो भाई लालो को आखते ने, लालो आ तू पावे ही करता रहेगा या कभी मन भी घड़ेगा? भाई लालो आखते सतगुरु पातशाह, मेरा काम मैं पावे कढ़ना, तुहाडा काम मैं मन कढ़ना, मैं अपना काम करी जाना, तुसीं अपना काम करी जाओ। सतगुरु हस पे कह लगे भाई लालो बड़ा सियाणा है, पर यह दस जिहड़े तू पावे कढ़दे ये लोगों के घर च लैण जांदे भी लकड़ां दे दिओ मैं पावे कढ़ दिओ। कह लगा नहीं पातशाह, मैनूं की पता किहनूं पावे चाहिए ने किहनूं नहीं,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਵੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਲੱਕੜਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਘੜ ਕੇ ਪਾਵੇ ਫੜਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਘੜਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੂੰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਘੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮਨ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲ। ਐਸਾ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਰੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਡਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਮਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ, ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 7 ਵਾਰ ਨਾਮ ਆਇਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ। आवाज दे के क्या सी, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान। वे लालो पाप की जंग ने काबू धाया, जोरी मंगे दान। वे लालो शर्म धर्म दो छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान। वे लालो काजियां बामना की गल थगी, अगत पड़े शैतान। वे लालो मुसलमानियां पढ़े किताबां, कष्ट न करे खुदाए। वे लालो जात सनाती होर हिंदवानियां, ये भी लिखे लाए। वे लालो खून के सुरले गामिया, नानक रत का कुंगू पाए। वे लालो 7 बार क्यों दर्ज किया? बस उसकी जिंदगी च 3 गुण सन, किरत करो, वंड छको, नाम जपो। एक पासे मलिक भागू है माल कूड़े बनाने वाला, दूजे पासे कोदरे की रोटी खाने वाला भाई लालो। उसकी जिंदगी च एडा संतोख, एडा राज। ते जिस दिन मलिक भागो ने बुलाया सी सतगुरु पातशाह नूं, सतगुरु ने एको गल कही सी, मलिक भागो तेरे माल कूड़ियां विच गरीबां दा खून है, उन्हां दी हक दी कमाई तो खो के जुल्म करके भोजन तैयार कीते ने। तेरे नालों भाई लालो दी कोदरे दी रोटी चंगी, जिहड़ी हक दी कमाई है, 10 नूहां दी किरत है, संतोख वाली कमाई है। मैं तेरे माल कूड़ियां दे नालों भाई लालो दी कोदरे दी रोटी पसंद करदा। क्यों? क्योंकि सिक्खी जीवन में संतोख होते, जीवन में राज है जिंदगी में। भिखारी कौन होंगे? जिस मनुख की भुख बाकी है ना, वो होर मिले, वो भावें देश का बादशाह ही क्यों ना हो, जिहड़ा गवांढी के देश के तेल के उपर ही अख लाई बैठा हो भी ये भंडारे मैनू मिल जाण, वो राज सिंघासन से बैठा भी भिखारी है। जिहदी भुख बाकी वो भिखारी है। जिहदी मंग है ना, मैनूं आह चीज़ मिल जाए, वो सिंघासन से बैठा भी मंगता है। ते राजा कौन है? जिहदी जेब फटी होवे, पैसा भी ना होवे, खाण लई भोजन ना होवे, अंतां दी गरीबी होवे, हथ जोड़ के कहे मेरे मालका मैं रज गया। जिहड़ा रज गया वो राजा हो गया। राजे तो रज बने। जिहड़ा रज गया ना, मैं तृप्त हाँ, मैं संतुष्ट हाँ, वो राजा है। ए मनुख इन्ना याद रखी, जिंदगी की दौड़ दे विच 100 कमा लेगा तो कहेगा 1000 होण, 1000 कमा लेगा कहेगा लख होण। दुनिया के पदार्थ भावां वधदे जाण, तू रज नहीं सकता। सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे, माया पाछे पावे। अनेक भोग विख्या ते करे, नैन तृप्तावे। खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को रजे। संतोख तो बिना रज नहीं है। और भाई लालो की जिंदगी में रज इस करके प्रवान चढ़े। किसी कवि ने बड़ा सोहना कहा, कहने लगा सतगुरु मेरी इच्छा भी मैनू दर्शन दिओ, मैनू दर्शन दिओ। मैं सुनिया तुसीं भाई लालो वर्गियां दे दरवाजे खड़का के, दरवाजे खुला के दर्शन दिंदे रहे, मैनू नहीं दे सकते। अगे चल के ने बड़ी सोहनी गल कही, कहने लगा गुरु नानक साहब की मजबूरी है, इस करके दर्शन नहीं दिंदे। मन लोचदा गुरु नानक दे मिलन ताई, किधरे साडे वेड़े चल पाए नानक। अमृत वेले प्रभात फेरियां विच आमो सामने किते मिल जाए नानक। भाई लालो वर्गा गुरसिख जे लभ जाए, आवाज मार के बूहा खड़काए नानक। तुसीं ते भाई लालो वर्गियां दे दरवाजे खुला के दर्शन दिंदे हो, मैनू क्यों नहीं दे सकदे? उन्हें अगली बड़ी प्यारी गल कही, कहने लगा लालो वर्गा गुरसिख जे लभ जाए, आवाज मार के बूहा खड़काए नानक। खबरे इहो गुरु नानक दी बेबसी है, लालो लभे ना किदे घर जाए नानक।
सतगुरु तुहाडी आ मजबूरी अज लालू वर्गा लभदा कोई नहीं। सबर संतोखी जीवन वाला, साधारण जीवन वाला, दसा दुआ की किरत करके वंड छकन वाला, रब्बी प्यार विच जुड़न वाला लालू नहीं तेन कोई लभदा जिहदे हिरदे च तू बाणी रूप होकर प्रकाशमान हो जाए। खबर यह गुरु नानक की बेबसी है, लालू लभे ना किदे घर जाए नानक। अज लोड़ है जिंदगी विच दौड़ खत्म करके संतोख लियाण दी, रज लियाण दी। मंगतियां वांगू जिउणा ते की जिउणा, भिखारियां वांगू जिंदगी जिउणी ते की जिउणी, क्यों ना राजियां वांगू मनुख जीव के जाए। इहो जिहा राजा कि बस्ता टूटी झुंपड़ी, चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना, मित्र ना इठ धन रूपहीन, किछ साख ना सिन्ना, राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिन्ना। इहो जिहा राजा कि जिसको बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाह ही पातशाह। जिहदे कोल रब्बी गुण आ जाते हैं वो सचमुच पातशाह हो जाता है। अखीरले बचन कहत कबीर जो इस पद बुझे, भगत कबीर आखते ने जिहड़ा इस पद मैंने इस अवस्था को बुझ लेना है ना, संतोखी जीवन, रज वाले जीवन, जिहड़ा माया की दौड़ को छड्ड के रब्बी मूल नाल जुड़ जाता है। कहत कबीर जो इस पद बुझे, राम रमत तिस सब कुछ सूझे। परमेश्वर के नाम को जपदिया उन्हें सारा कुछ सूझ जाता है। भाव कायनात विच अपनी जिंदगी सफल करके जाता है। ऐ मेरे मना इस जीवन को सफल करी, जिन्हें इन्ना कुछ दिता। जियो पाए तन साजिया, रखिया बढ़त बनाए। अखी देखै जेबा बोले, कन्नी सुरत समाए। पैरी चले हथी करना, दिता पहले खाए। जिद रच रचिया तिसे न जाने, अंधा अंध कमाए। जां भजै तां ठीकर होवे, घाट घड़ी न जाए। जिदन इन्हें ठीकरी घड़े ने टुटने, ठीकरियां होके बिखर जाने, इन्हें जुड़ना भी नहीं है। जा भजे तां ठीकर होवे, घाट घड़ी न जाए। नानक गुर बिन नाहे पत, पत बिन जिहड़ा गुरु तो बिना पत नहीं, इज्जत नहीं, ते पत तो बिना व्यर्थ चला जाता है। नानक गुर बिन नाहे पत, पत बिन बिरथा जाए। कहने लगे जन्म व्यर्थ हो जाता है। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम चीज़ां कुछ खाए। भाव इस जीवन को जिउंदियां संजम नाल, जीवन को जिउंदियां संतोख दे नाल, शुक्र दे नाल जिस तरह असीं जिंदगी को बतीत करांगे, साडी दौड़ भी खत्म हो जाएगी ते नाल नाल सुख दुख विच रजा विच रहिंदियां होइयां जीवन भी सफल कर सकांगे। इलोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले बेअंत भुल्लां खिमा। अगले शब्द विच असीं किवें मनुखा जीवन को जिउणा है, इस संबंधी विचार होणगियां। मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कले